हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल ऑन टुडेज पॉडकास्ट। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक नई तरह की प्राण शक्ति के बारे में जिसका नाम है प्राण वायु। ये एक मेजर तरह का प्राण है। इट्स अ मेजर टाइप ऑफ प्राणा विच इज़ existent in our inner selves, and it is very much responsible for the working of our inner power. It is directly responsible for our immunity and good health. ये एक ऐसी प्राण शक्ति है जो हमारी बॉडी के अंदर घूमती रहती है और इसका डायरेक्ट कॉस्मिक कनेक्शन है यूनिवर्स से। ये सबसे बड़ी मेन प्राण शक्ति होती है हमारी शरीर के अंदर। हमारे शरीर कितने तरह के तत्वों से बना हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि बाहरी तत्वों के कारण हमारा शरीर बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगता है। We often fall sick very quickly. Even though we are not going out anywhere, हम कहीं बाहर नहीं जाते, फिर भी कमरे में बैठे बैठे भी, घर में बैठे बैठे भी हम बीमार हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग रोज़ बाहर भी जाते हैं फिर भी उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ नियम अनुसार सैर करेंगे, अपना पूरा ध्यान भी रखेंगे, लेकिन कुछ करके भी, इतना कुछ करके भी उनकी बॉडी इम्यून नहीं हो पाती, बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। खांसी, ज़ुकाम, पेट दर्द, कुछ ना कुछ चलते रहता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में भी रहेंगे तो भी उतना अपने लिए नहीं करेंगे, फिर भी हेल्दी रहेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हमारी प्राण शक्ति के कारण। जो प्राण शक्ति हमारी बॉडी के अंदर घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, अगर आपकी प्राण शक्ति कमज़ोर होगी तो आपका आत्मबल, आपकी विल पावर भी उतनी ही कमज़ोर होगी। इफ़ योर प्राण शक्ति, द लाइफ फोर्स एनर्जी दैट गवर्न्स योर बॉडी इंटरनली इज़ वीक, then in that case your immunity will be weak and your resistance to fall sick will be also lesser. You will have less resistance. कुछ भी होगा, you will fall sick very quickly. Therefore, it is highly important that we must enhance the willpower, and in order to enhance the willpower, we have to enhance our pran shakti. Prana is the first most important type of major prana in our body, which revolves around in the head and up to the heart. Okay, so when I talk of pran shakti, it can be an essential element which provides oxygen, because your nose comes under that periphery, right, between your third eye chakra, that is the crown chakra, and to your heart. What all chakras come? Your crown chakra comes, the bindu chakra comes, the nostrils come, for which regulate the breathing, then comes the throat chakra and your heart. So all these organs are controlled, its vitality is controlled by the prana shakti of pran vayu. So in this case we have to make sure that our pran shakti is enhanced and it works well for raising our immunity, for raising our willpower to keep us strong in all circumstances, especially in these times when we are going through a global health crisis, isn't it? So what are the major ways of clearing up your resistances and enhancing the power of your prana? So we can practice the pran shakti kriya as explained. We can do the Bagad Bam kriya, we can do the Om kriya to clear up our energies vertically. We can do Nadi Shodhana, which is alternative breathing. We have to practice Kapalbhati, which is abdominal breathing. We have to practice Ujjayi Pranayam, which is reverse breathing. So all these techniques are highly beneficial
in case of enhancing our willpower, our immunity, and enhancing the most of all the Pran Shakti, that is the life force, universal life force energy in our body. So prana is the main type of prana, the first most important one. Then we come to the Apana Vayu, which is another type of major prana. Apana prana influences the lower part of the body, that is from the navel to the soles of the feet. आपके नेवल से लेके, नाभि से लेके और पैरों के तलों तक. So prana regulates the elimination process. ये ज़्यादातर टॉक्सिन्स को वॉश आउट करने के लिए यूज होता है. द प्राण शक्ति ऑफ अपाना वायु इज यूज्ड फॉर द regulation of elimination process. The diseases that affect the lower abdomen, that is the intestines, kidney, urinary tract, legs, etc., are the result of disturbed apana pran. When your apana pran is disturbed, then you face issues like intestinal infections, kidney disorders, UTIs, etc., etc. You will feel as if your legs do not have the power to walk. You are not able to carry yourself with energy and vigor. That means the apana vayu is disturbed. There is lack of apana vayu. The techniques of Noli, Agnisara Kriya, Ashwini Mudra, and Moola Bandha reserve the right to strengthen and purify your apana prana. Do you remember I mentioned about the Moola Bandha in the unit of chakras as well? It is a kriya which was used by Lord Shiva to purify himself. So apana pran can be easily activated and strengthened and purified by the use of these techniques. Now we come to the Vyana pran. The Vyana pran flows through the nerve channels of the human body. It has an effect upon the whole body and particularly the nadi system. जो व्याना प्राण होता है वो ज़्यादातर हमारे नर्व चैनल्स को इजीली कंट्रोल करता है और वो नाड़ीज़ के ऊपर अपना असर करता है. Poor circulation and impaired nerve stimulation, nervous breakdowns originate from the deficiency of Vyana pran. जब भी व्याना प्राण जो है कमज़ोर हो जाता है, उसके अंदर उतनी लाइफ फोर्स एनर्जी नहीं होती, तो हमारी नसें जो नर्व्स होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, हमारी सर्कुलेशन इम्प्रॉपर होती है और बहुत बार हमें नर्वस ब्रेकडाउन्स भी फील होते हैं, हम एंग्शियस हो जाते हैं. व्याना प्राण इज़ एक्टिवेटेड एंड स्ट्रेंथन्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ कुंभका, दैट इज़ ब्रेथ रिटेंशन. आप ब्रीथ करिए लंबी सांस, उसको होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे रिलीज़ कीजिए. The 3-4-3 technique, that is inhale for 3 seconds, hold for 4 seconds and exhale for 3 seconds again. With each natural and relaxed breath that we take, there is an automatic pause between inhalation and exhalation. और यही है हमारी ultimate consciousness. That is the gap between the inhalation and exhalation. आप inhale कीजिए ज़ोर से, just inhale and exhale. ये जो छोटा सा pause आया ना आपके inhalation और exhalation के बीच में, यही है actual consciousness. आपको awareness इसी में मिलती है. जिन लोगों की inhalation और exhalation के बीच में gap ही नहीं होता, बहुत shallow breathing करते हैं लोग, सांस ली छोड़ी जल्दी सांस लेते हैं ना. जब हमें गुस्सा आता है तब भी हम बहुत जल्दी सांस लेते हैं, तो
उन लोगों की अवेयरनेस भी उतनी ही कम होती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ और प्राण वायु, अपान वायु बहुत कमज़ोर होते हैं। लेकिन जो लोग नॉर्मली कामली लंबा सांस लेते हैं, जब आप लंबा सांस लेते हो तो आपके पेट से सांस ऊपर आता है, और जब पेट से सांस ऊपर आता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है, इसको हम योगिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो आप काम स्टेट में रहते हो, ना ही सिर्फ आपका ब्रीदिंग प्रोसेस नॉर्मल होता है बल्कि आपका माइंड और सोल नरिश होते हैं। सो लेट अस नॉट डिविएट फ्रॉम दिस टॉपिक, वी विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर। लेट अस गेट बैक टू द व्याना प्राण. So Kumbhaka Pran, that is holding your breath and then releasing, automatically there is a pause between inhalation and exhalation. In the practice of pranayama, the pause is consciously lengthened. जब आप प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने आप ही कॉन्शियसली बीच में एक ब्रेथ जो है मिस करके उसको होल्ड करते हैं. When we retain the breath, we withhold the energy, and a result of which pressure is built up and energy is released within the body. The pressure has the effect of releasing the blockages. तो जब आप अपने प्रेशर को होल्ड करते हैं, ब्रेथ के प्रेशर को, आपने जैसे लंबा सा सांस अंदर ले लिया, प्रैक्टिस कीजिए एक बार, और फिर जब आप रोकेंगे तो अंदर अंदर प्रेशर बिल्ड होता है ना, यू फील एज इफ यू फील लाइक एक्सेलिंग बट यू आर नॉट एक्सेलिंग. सो दैट प्रेशर रिलीजेस द टॉक्सिन्स, आपके टॉक्सिन्स को इकट्ठा करके बाहर रिलीज करता है और एनर्जी ब्लॉकेजेस को भी ख़त्म करता है. तो जब बाहर वो जब एक्सेल करेंगे तो उस एक्सेलेशन के साथ रिटेंडेड एयर के साथ आपकी टॉक्सिन्स भी वॉश आउट होके बाहर आएंगी, रेजिस्टेंसेस और ब्लॉकेजेस भी हट जाएंगी. तो इस तरह से ना ही सिर्फ आपके चक्र क्लीन्स होंगे बल्कि आपकी प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु सब क्लियर होता जाएगा, आपके प्राणास एक्टिवेट होंगे क्योंकि टॉक्सिन्स वॉश आउट हो रहे हैं. सो कुंभका स्टिमुलेट्स द नर्वस सिस्टम, आपकी सारी नसों को वो हिला के रख देगा. इट विल शेकन योर बॉडी फ्रॉम इंटरनली. बाहर से ऐसे नहीं कि आप हिले जा रहे हो, नहीं, अंदर से आपके सारे सिस्टम को वो हिला देगा. एंड महाबंधा नोज द सब्सिक्वेंट, उसके बाद का काम है महाबंधा का. महाबंधा इज़ अ प्लेजेंट सेंसेशन ऑफ पीस, आपको बहुत ही पीसफुल फील होता है ऐसे करके. एंड इट फ्लोज थ्रू द बॉडी. दिस इज़ द रीज़न फॉर बीइंग एबल टू मेडिटेट वेल आफ्टर द प्रैक्टिस. जब आप कुंभका ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आप मेडिटेट करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि आपका माइंड स्टिलनेस और साइलेंस के जोन में आ जाता है. सो व्याना प्राण तो एक्टिवेट होगा ही होगा, आपका माइंड और सोल नरिश होंगे, आपको पीसफुल फील होगा. और फिर वो लोग जो मेडिटेट करते टाइम ध्यान नहीं लगा पाते, जिनको ज़्यादातर शिकायत होती है कि बहुत इधर उधर की थॉट्स आ रही हैं, उनकी वो थॉट्स धीरे धीरे कम होने लगेंगी, आपकी प्राण शक्ति बढ़ती जाएगी, आपकी स्किन, आपका फ्लैश, आपकी माइंड, सोल विल बिकम मोर एंड मोर नरिश्ड एंड ब्यूटिफुल. इसके साथ आपकी सटल बॉडी जो है एक्टिवेट होगी, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट होगी, आपके चक्रा से, प्राणा से ब्लॉकेजेस ख़त्म होते जाएंगे. दिस इज़ द रीज़न फॉर बीइंग एबल टू मेडिटेट वेल. और आप मेडिटेट करने में आपका दिल लगेगा और उसके बाद जब आप उठेंगे तो आपको बहुत अच्छा, बहुत ही साइलेंट, अंदर से काम महसूस होगा. एंड सर्टेनली द मोस्ट इफ़ेक्टिव बेनिफिट इज़ कि आपका व्याना प्राण एक्टिवेट हो जाएगा, इंक्रीज्ड फ्लो होगा व्याना प्राण के अंदर. और ये जो किडनी की और नर्वस ब्रेकडाउन्स की और एंजाइटी की प्रॉब्लम्स आप फील करते हैं, यू विल नो लॉन्गर फील देम. इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू परफॉर्म द फॉलोइंग ब्रेथ एक्सरसाइजेज सेवरल टाइम्स अ डे. इनहेल डीपली एंड एक्सहेल वंस. Inhale and hold the breath for as long as you are comfortable, and then exhale the breath that you have held for a while. Repeat this 4 to 5 times each day. The benefit of this simple breath exercise is
quickly noticed, and our nerves are truly grateful. Our body gets nurtured, our soul and mind also gets nurtured. Last but not the least, then we come to the Udana Pran. Udana Pran is the ascending energy that flows from the heart to the head and the brain. तो उडाना प्राण का मेन फंक्शन है आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी को हार्ट से ऊपर तक लेके जाना. आपको याद है प्राण वायु के बारे में जब हमने बात किया था तो वो सर्कुलेट हो रही थी आपके सिर से लेके हार्ट तक, लेकिन उडाना प्राण उल्टा काम करता है. इट गोज फ्रॉम योर हार्ट टू द हेड एंड द ब्रेन. उडाना प्राण अकम्प्लिशेस द अवेकनिंग ऑफ द कुंडलिनी शक्ति. आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग में उडाना प्राण का एक बहुत बड़ा और सिग्निफिकेंट रोल है. It is with the assistance of Udana Pran that the astral body separates from its physical body. A strong Udana Pran eases the phase of death. जब हम सबको पता है कि किसी न किसी टाइम हमको इस जीवन से पर्यंत होना ही है. We all have to exit this world. It is a temporary house that we have. We have to go towards our permanent address, which is the God's abode. And Udana Pran, if your Udana Pran is strong enough, then at the time of transcending to another realm, you will not face any problem. It will ease out your phase of death, the ultimate transcend from the life on this realm to the abode of Almighty. With the control of Udana Pran, the body becomes very light and once may gain the ability to levitate. आप जीते जी उठ सकते हैं. ग्रेविटी के लॉज को आप फेल कर सकते हैं अगर आपका उडाना प्राण, उडाना मीन्स उड़ना, तो आपको उड़ने के काबिल बना देता है. When Udana Pran is in our control, the external obstacles like water, earth or stones no longer obstruct us. Intense practice of yoga breath exercises also gives floating in the air. Saints and fakirs who sit or lie down on the beds of nails possess the ability to control their Udana Pran. वो आपने देखा है कई बार उठे रहते हैं ज़मीन से, नीचे आग जल रही होती है. It is because their power of prana is so strong that they don't feel the heat, they don't feel the gravitational pull. They have full control over their pranas. Yogis who live in the forest and remain unaffected by heat, cold waves, thorns, insects are protected through the control of Udana Pran. Udana Pran is activated by the practice of Ujjayi Pranayam. उल्टा रिवर्स ब्रीथ करना अपने मुंह से और ये जो एक्सरसाइज है उज्जयी प्राणायाम की आपको बहुत हेल्प करेगी आपके थायराइड को हील करने के लिए. और भ्रमरी प्राणायाम किसे कहते हैं, बटरफ्लाई पोज, एज वेल एज विपरीत करनी मुद्रा, एज वेल एज विपरीत करनी मुद्रा. सो भ्रमरी प्राणायाम टेक्निक कैसे करते हैं? क्लोज द ईयर्स विद द फिंगर्स, इनहेल एंड व्हाइल एक्सहेलिंग थ्रू द नोज a hum like bumblebee sound is produced but the mouth is closed. जब आप कान बंद करके हम का साउंड सुनेंगे इसको हम कहते हैं भ्रमरी प्राणायाम. After 5 or 7 breaths, just sit down motionless and breathe normally with ears closed. Concentrate on your inner space and listen to the inner sound. This exercise will calm down your nerves and thoughts and promote concentration and bring you into contact with your inner self.
Now we come to the next type of main prana, which is the samana pran. समाना प्राण होता क्या है? समाना प्राण बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्राण है क्योंकि वो दो मेन चक्रस को आपस में कनेक्ट कर देता है. दैट इज़ द अनाहता चक्र एंड द मणिपुरा चक्र. कौन से होते हैं अनाहत चक्र और मणिपुरा? अनाहत चक्र मीन्स आपका हार्ट चक्र और मणिपुरा चक्र मीन्स आपका सोलर प्लेक्सस. समाना प्राण डिस्ट्रीब्यूट्स द एनर्जी ऑफ न्यूट्रिशन थ्रू आउट द बॉडी. जो भी आप खाते हैं उससे जो भी न्यूट्रिशन ड्राइव होता है उसको आप समाना प्राण के थ्रू ही अपनी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. हम सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है. ऑल ऑफ अस नो दैट फूड नॉट ओनली इन्फ्लुएंसेस आवर फिजिकल बॉडी but also affects our psyche and consciousness. कहते हैं ना, जैसा खान पान होता है वैसा ही हमारा तन और मन भी होता है. तो ना ही सिर्फ खाना हमारे तन को रिफ्लेक्ट करता है बल्कि हमारे मन, हमारी सोच, हमारी सोल को भी नरिश करता है. इसीलिए कहते हैं खाना हमेशा शांत मन से बनाना चाहिए और शांत मन से ही उसको खाना चाहिए. अगर आप कभी गुस्से से खाना बनाएंगे और गुस्से से खिलाएंगे या गुस्से में आप खुद भी खाएंगे, वो खाना कभी आपके तन को नहीं लगेगा. इसीलिए बोलते हैं बच्चों को कभी डांट डपट के खाना नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि उसके तन में वो खाना लगेगा ही नहीं, वो पनपेगा ही नहीं क्योंकि वो कुड़ता रहेगा. आप उसको गुस्से की वाइब्रेशन भेजेंगे, वो आपको कुड़न की वाइब्रेशन वापस भेजेगा और वो खाना कभी भी आप उस बच्चे के तन को, मन को नरिश नहीं करेगा. और जब तन को, मन को नरिश नहीं करेगा तो ना तो वो फिज़िकली ग्रो होगा और ना ही उसकी मेंटल डेवलपमेंट जो है वो ठीक से होगी. या तो वो पढ़ाई में पीछे रहेगा या हर वक्त लोगों से लड़ाई झगड़े करेगा. तो समाना प्राण को नॉर्मल करने के लिए वी हैव टू बी हैप्पी व्हेन वी कुक, वी हैव टू बी हैप्पी व्हेन वी ईट. We should make sure that we consume sattvic food, vegetarian food that nourishes our pranas. ये प्राणास जो हैं they are a direct link between us and the God. ये भगवान की एनर्जी है और आप भगवान की एनर्जी को किससे फीड कर रहे हैं? आप भगवान की एनर्जी को नॉनवेज खा के, मरे हुए मांस से फीड कर रहे हैं. भगवान खुश होगा? मरी हुई चीज़ें खा के. आप मरी हुई चीज़ें, कुत्ता बिल्ली सड़क से कुछ खाते हो? नहीं खाते हो. तो भगवान को क्यों खिला रहे हो? तो अपने अंदर अपने प्राणों को एक्टिवेटेड रखने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फ्रेश होम कुक्ड फूड, सात्विक फूड एटलीस्ट वंस इन अ डे एंड ईट एट अ टाइम व्हेन यू आर काम. देयर शुड बी नो डिस्टर्बेंस. टीवी, फ़ोन, लड़ाई झगड़ा, इमोशनल डिस्टर्बेंस सब कुछ पीछे छोड़ दीजिए. खाते टाइम सिर्फ खाना और भगवान का नाम. Prana is strengthened through the practice of Agnisara Kriya and Nauli. And the practice of these two kriyas prevent the digestive problems. जब हम ये दो क्रिया करते हैं तो हमारा अग्नि तत्व बॉडी का एक्टिवेट हो जाता है. आपको पता है ना हमारे अंदर अग्नि है क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है. कौन कौन से हैं? अग्नि, आकाश, वायु, जल और धरती, पृथ्वी. तो अग्नि उसमें से एक मेन तत्व है जो डाइजेशन के लिए और टेम्परेचर कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो समाना प्राण में जब हम एक्टिवेट करते हैं नौली क्रिया के द्वारा और अग्निसरा क्रिया के द्वारा तो हमारी डाइजेस्टिव इश्यूज जो हैं ख़त्म हो जाते हैं और डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी नहीं होती. It also improves one's resistance towards various infectious diseases and various problems like cancers and tumors are also found to be inactive if one cleans the samana pran and activates it.
The most effective technique for awakening of Samana Pran is Kriya Yoga, the Shiv Yoga that I teach all of you. The practice of Kriya Yoga warms the body. This is due to the rising of Samana Pran. A very aware person can observe the aura of a Kriya practitioner and becoming brighter and stronger with each round of practice. जब आप क्रिया करते हैं आपकी अपने प्राण चक्र सब 5 एलिमेंट्स बैलेंस और एक्टिवेट हो जाते हैं. उसके कारण आपका आउटर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड जो है बॉडी में वो क्लियर आउट होता है और आपकी ऑरा बहुत जल्दी बदलती है. So this is about the 5 major type of pranas that I have discussed. In fact, indeed it is a long video, but each and every word of knowledge is unique and important and significant for all of us. So let's benefit by listening to this podcast again and again. Each and every type of main prana has been discussed. Its relation to chakras has been discovered. Do listen to this, because if you want to change your life, if you want to achieve what you want in your life externally, then the change has to come from within. And that can only come if your inner journey begins. So explore yourself, because life is magical and so are you. Lots of love and blessings to anyone and everyone who's listening this and everywhere around the world. Thank you so much. This is your friend, mentor and guide Neeti signing off.